Hello everyone. A very good morning to dear children. I am Miss Udita, your English teacher. Children, we are going to start the new unit and it is starting with a very nice poem. The poem name is Hivatha. Children, what is the name of the poem? As you can see on the screen, there is the poem whose name is Hivatha. Okay, that's name is Hivatha. हिवाथा इज़ अ रेड इंडियन बॉय. जो हिवाथा था वो रेड इंडियन बॉय था. आई विल टेल यू हु आर द रेड इंडियंस बॉय. ओके, आई विल टेल यू, बट लेट मी टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू. एज यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द पोएम कंप्लीटली. सबसे पहले हम पोएम को रीड करेंगे सो डैट यू एबल टू प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड क्लियरली. बिकॉज जब आपको हर एक वर्ड पढ़ना आ जाएगा देन इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड द पोएम. After reading, I will explain the poem in detail. Okay, but first of all, you need to read each and every word very clearly. Watch the reading part at least twice. आप कम से कम twice देखिए तो आपका reading अच्छा होगा. Try to read more and more so that you can able to understand the poem in reading only. And after that, we will proceed for the explanation. So children, now let's have the reading. A very good morning to all of you dear children. We are going to read the new poem in your book Hivatha in English book class 4. Children, you will see it is the poem in your book. Okay, and today we are going to only read. आज हम सिर्फ read करेंगे and tomorrow we will discuss. Okay, we will have the explanation for the poem. Now let's start the reading. Hivatha. Hivatha was a young red Indian boy. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. Nokomis taught Hivatha about the wonders around them. She told them about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals, and the many other things. Okay, Hivatha grew up to love them all. He could talk to the birds and the animals, and they to him. Okay, now next, learn the little Hivatha learned of every bird, its language, learned their names and all their secrets, how they built their nest in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hivatha's chickens. Of all the beasts he learned the language, learned their names and all their secrets, how the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeers ran so swiftly. It is children swiftly. Why the rabbit was so timid. Talked with them whenever he met them. Called them Hivatha's brother. This poem is written by H.W. Longfellow. ठीक है, this the boy is Hivatha. You can see he loved animals so much. This is deer, rabbit, all over there are so animals around him. Okay, you have to read this poem right now only. Thank you. Hello everyone, I am Udita, your English teacher. I will now explain the poem Hivatha. जो Hivatha poem है, we have read it. Now we will have the explanation for the same. Okay children? Okay children, the poem name is Hivatha that we have already read it. Now we will have the explanation for the poem Hivatha. Okay, Hivatha was a young red Indian boy. जो Hivatha था वो एक यंग यानी जवान रेड इंडियन बॉय था.
चिल्ड्रन रेड का मतलब यू नो इट इज़ रेड, इंडियन मीन्स भारतीय, बॉय मीन्स लड़का। अब ये रेड इंडियंस क्या होते हैं चिल्ड्रन, यहाँ पे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेड इंडियंस कौन होते हैं। चिल्ड्रन रेड इंडियंस बेसिकली कौन होते हैं, यस आपकी इसके पीछे की स्टोरी हम बता देते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, बहुत पहले की बात है, जो यूरोप के लोग थे उन्होंने सोचा, उनको बड़ी क्यूरियसिटी थी कि लेट्स फाइंड आउट इंडिया, भारत कहाँ पे है ये फाइंड आउट करते हैं। तो वो भारत को ढूंढने निकल पड़े। जब वो भारत को ढूंढ रहे थे तो उनको जाना ईस्ट था, लेकिन वो वेस्ट डायरेक्शन में चले गए, मतलब उन्होंने डायरेक्शन ही गलत ले ली, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन ले ली, तो उनको इंडिया तो मिलना ही नहीं था। तो जब वो ईस्ट की बजाय वेस्ट में चले गए तो उनको एक प्लेस मिला, एक लैंड मिला जिसको उन्होंने बोला ये भारत है, लेकिन वो भारत नहीं था, वो इंडिया नहीं था। तो वो था क्या चिल्ड्रन, वो था अमेरिका। अमेरिका का एक पार्ट था वो, और ऐसा पार्ट था जहाँ पे बहुत धूप होती थी, बहुत लंबी लंबी ग्रास होती थी, जिसकी वजह से जो वहाँ पे लोग रहते थे वो वाइट कलर के नहीं होते थे, फेयर कलर के नहीं होते थे। द कलर ऑफ दोज पीपल्स रेडिश उनकी स्किन का कलर होता था, इसलिए वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उन्होंने उनको बोल दिया रेड इंडियंस। दे आर रेड इंडियंस बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बिकॉज इट इज़ रेडिश इन नेचर। ओके, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली इंडिया, बट क्योंकि वो उसको इंडिया बोल चुके थे तो उस टाइम पे हमने उस बॉय का, वो बॉय कौन हो गया, रेड इंडियन बॉय। ओके, तो ये बाय मिस्टेक हुआ, लेकिन बाय द टाइम पीरियड इट इज़ पता चल गया कि वो अमेरिका है, इट इज़ नॉट इंडिया, वो एक अलग बात है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अब आपको समझ में आ गया रेड इंडियन बॉय कौन होते हैं, किसको बोला गया है। ओके, हिवाथा क्या था, एक यंग रेड इंडियन बॉय था। ही लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी के साथ रहता था, नोकोमिस इन अ विंगवैम। ठीक है, नोकोमिस इज़ द नेम फॉर द ग्रैंड मदर, जो उनकी ग्रैंड मदर दादी थी उनका नाम था नोकोमिस। नाउ व्हाट इज़ दिस विंगवैम। अब विंगवैम क्या है चिल्ड्रन, विंगवैम इज़ द नेम यूज्ड देयर फॉर अ हट, एक हट के लिए। आप ये देख सकते हो, दिस इज़ कोन टाइप का जो ये बना है, अलग तरह की हट है। जो हमारे यहाँ हट मिलती है चिल्ड्रन, वो कैसी होती है, आप कभी फॉरेस्ट में देखोगे, कहीं भी देखोगे, दिस इज़ द कॉमन हट इन आवर इंडिया। बट देयर इन जो कि हमारा एक प्रकार से देखो तो वेस्ट अमेरिका जो उन्होंने एक्सप्लोर किया था, वहाँ पे इस तरह की हट बनती थी जो कि मैं आपको शो कर रही हूँ। इस तरह की हट, झोपड़ा को विंगवैम क्या कहते हैं चिल्ड्रन, विंगवैम। इट इज़ अ काइंड ऑफ हट, ये भी एक हट होती है। ठीक है, क्या होती है ये चिल्ड्रन, एक हट होती है, एक झोपड़ी होती है जो इस शेप में बनती है, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। नोकोमिस टॉट हिवाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। जो नोकोमिस कौन थी, हु इज़ नोकोमिस चिल्ड्रन, येस नोकोमिस इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ हिवाथा। टॉट हिवाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम, तो उसको टॉट सिखाया गया जो भी वंडर्स उनके आसपास होते थे। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। जो भी उस टाइम पे वहाँ पे आसपास में होता था, उसने उन सब चीज़ों के बारे में हिवाता को बताया। मे बी इट कैन बी, वो मानो स्टार्स हो या कोई भी ट्री हो या किसी भी इंसेक्ट कीड़े के बारे में बताना हो, कोई बर्ड्स, कोई एनिमल्स, और कोई भी जो भी आसपास उनकी बहुत सारी चीज़ें थी, सबके बारे में वो दादी हिवाता को बताती रहती थी। ठीक है, हिवाथा ग्रू अप टू लव देम ऑल, बिकॉज जब वो पूरा दिन ही उन्हीं की बात सुनता था, उसको बहुत नॉलेज थी उन सब के बारे में, तो वो उनको बहुत प्यार करने लगा। ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम। ओ माई गॉड, लिसन चिल्ड्रन, ही कैन टॉक, मतलब टॉक कब कर पाओगे बर्ड्स और एनिमल्स से, व्हेन यू विल एबल टू स्पीक देयर लैंग्वेज और अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। दैट मीन्स हिवाथा ने सब बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स की लैंग्वेज सीख ली थी, तभी वो उनसे बात कर पाता था और वो भी उससे बात कर पाते थे। बिकॉज कन्वर्सेशन 2 वे प्रोसेस है, अगर आपकी बात कोई समझ पा रहा है, वो भी आपकी बात और आप भी उनकी बात समझ पा रहे हो, इसका मतलब आप लोग टॉक कर सकते हो। बट अगर एक ही बंदा समझ पा रहा है और सामने वाला नहीं कर पा रहा है, तो भी आप आपस में बातचीत नहीं कर सकते। ज़रूरी है कि दोनों को एक दूसरे की भाषा आए, तो तभी बहुत अच्छा, मतलब इन दोनों के बीच में जो भी बर्ड्स, इंसेक्ट और हिवाता था, सब कुछ उसने उनके बारे में लर्न कर लिया था, इतना कि वो उनसे बातें भी कर पाता था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। देन द लिटिल हिवाथा लर्नड ऑफ एवरी बर्ड्स इट्स लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या हुआ, लिटिल हिवाथा ने, छोटे हिवाथा ने सारे बर्ड्स की लैंग्वेज लर्न कर ली। लर्न मतलब सीख ली, याद कर ली।
लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और सारे बर्ड्स के नेम्स भी याद हो गए और उनके सीक्रेट्स भी, सारे राज भी उसको पता थे, कौन बर्ड्स कहाँ रहता है, कैसे रहता है, बहुत सारे बर्ड्स की अपनी अपनी बातें होती हैं, किसको क्या खाना पसंद है, उसको सब पता था। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट, सीक्रेट्स मतलब इसी तरीके की, हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर्स, दीज आर द सम ऑफ द सीक्रेट्स, की वो कैसे इस गर्मियों में अपना नेस्ट बनाते हैं। बिल्ड मतलब बनाना, नेस्ट मतलब घोंसला, समर्स यू नो। वेयर, हाउ मतलब कैसे, नाउ वेयर मतलब कहाँ, वेयर मीन्स चिल्ड्रन कहाँ, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ। वेयर दे हिड, हिड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ हाइड, वेयर दे हिड देमसेल्फ इन विंटर, अपने आप को वो कहाँ पे हाइड, कहाँ पे छुपाते हैं विंटर्स में, कौन, बर्ड्स, हिड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ हाइड। टॉक विद देम वेन एवर ही मेट देम, हमेशा जब भी वो उनसे मिलता था, मीट की सेकेंड फॉर्म होती है मेट, वेन एवर इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेन एवर मीन्स जब भी, टॉक्ड मतलब बातें करता था वो उनसे जब भी वो उनसे मिलता था। कॉल्ड देम हिवाथास चिकन्स, एंड वो सारे बर्ड्स को क्या कहता था चिल्ड्रन, हिवाथास चिकन, चिकन्स आर द बेबी, ठीक है, तो वो हिवाथा जितने भी बर्ड्स थे, छोटे छोटे बर्ड्स थे प्यारे प्यारे, वो उनको अपने चिकन्स कहता था, कौन, हिवाथा। Okay children, now move ahead in the story. Okay, this is, you can see Hivatha. In this picture you can see children, see this is Hivatha and how many birds and animals are there, है ना। तो now let's move ahead. Of all beasts he learned the language, वो सारे जितने भी जानवर थे सबकी वो सब की लैंग्वेज जान चुका था। लर्न देयर नेम्स एंड देयर सीक्रेट्स, वो बर्ड्स की तो जाने क्या था, और जानवरों की और भी तरह की जो भी प्रकृति के जो भी हमारे लिविंग बींग्स होते हैं सबकी सीक्रेट्स और नेम जान चुका था। हाउ द बेवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, बेवर्स एक काइंड का एनिमल जानवर होता है जो कि अमेरिका में ही पाया जाता है, एंड वो रात को जागता है, वो एनिमल जो होता है बेवर वो रात को जागता है, तो वो अपने लॉजेस यानी घर, अपने लॉजेस कैसे बनाते हैं वो उसको पता था। हाउ मतलब कैसे। वेयर द स्क्विरल हिड देयर एक्रोन्स, हिड अगेन इज द पास्ट फॉर्म ऑफ हाइड, स्क्विरल गिलहरी, जो स्क्विरल है वो अपने एक्रोन्स कहाँ छुपाती है। एक्रोन्स इज अ काइंड ऑफ अ नट, खाने की चीज़ होती है। एक्रोन क्या है चिल्ड्रन, अ काइंड ऑफ नट, एक्रोन इज द काइंड ऑफ अ नट। हाउ द रेंडियर रन सो स्विफ्टली, इतनी आसानी से इतनी स्विफ्टली कैसे रेंडियर्स रन करते हैं। रैन इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ रन। रेंडियर, दिस इज द रेंडियर, एक प्रजाति है डियर की, हिरन की एक प्रजाति है रेंडियर। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, टिमिड होते हैं जो एकदम से डर जाते हैं। चिल्ड्रन टिमिड का मीनिंग क्या होता है, एकदम से डर जाना। तो जो आप कभी भी देखो रैबिट एकदम से डर के भाग जाता है, तो उसको ये पता था वाई, क्यों, वाई का मतलब क्यों, वेयर का मतलब कहाँ, हाउ का मतलब कैसे। तो वाई द रैबिट सो टिमिड, जो रैबिट था वो इतना टिमिड क्यों था उसको ये तक भी पता था। टॉक विद देम वेयर एवर ही मेट देम, वो हमेशा उनसे बात करता रहता जब भी वो उन लोगों से मिलता था। कौन, यस हिवाथा, हमेशा उन लोगों से बातें करता था। कॉल्ड देम हिवाथास ब्रदर, जो सारे बर्ड्स थे उनको वो हिवाथास चिकन कहता था, और जो सारे जानवर एनिमल्स थे उनको वो हिवाथास ब्रदर, हिवाथा के भाई कहता था। कौन, हिवाथा। तो इस चीज़ से पता लगा लो उसने अपना परिवार ही किनको बना लिया, सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। तो ही लव्ड देम सो मच, ही नो एवरीथिंग अबाउट देम, वो उन सब के बारे में सब कुछ जानता था। Okay children, like this we have ended with the explanation for the poem Hivatha. Thank you so much.